ناظرین و سامعین، شائقین ادب ایک ایسی تنظیم ہے جس کا قیام 1 جون 2024 کو ہوا۔ اس کا مقصد تھوڑا مختلف ہے۔ ہم اس میں روایتی نشستیں نہیں کریں گے، ہم ہر 3 مہینے پہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کریں گے جس پہ ہمارا مشاعرہ منعقد ہوگا۔ اس دفعہ تیسرے مہینے میں یعنی اگست کے مہینے میں ہم نے طے کیا ہے کہ شہر ادب کی نہایت ممتاز و معتبر اور محترم شخصیت احمد ابراہیم علوی کو عنوان بنایا جائے۔ شعراء کرام بالاتفاق ردیف بنا کر، عنوان بنا کر، یا جس صنف میں چاہیں، دوہے میں چاہیں، رباعی میں چاہیں، نظم کی شکل میں چاہیں، ان کی شخصیت کا احاطہ کریں، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اس سے قبل جولائی کے مہینے میں یعنی 1 جولائی کو انشاءاللہ مشاعرہ منعقد ہوگا اور اس میں عنوان کوہرام طے پایا ہے۔ اس کوہرام کو ردیف کے طور پہ یا عنوان کے طور پہ آپ لوگ یعنی شعراء کرام رنگ بھر سکتے ہیں اور ناظرین و سامعین کو محظوظ کر سکتے ہیں۔ شارق لہرپوری صاحب آج کل ایک عجیب حادثاتی معاملات سے گزر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا اس نے ایک نیک کام یہ کیا، نیکیاں یہ بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں۔ ان کے سارے بچے اس طرح کے مولوی ہیں کہ جن کو کبھی داڑھی کے لیے کہا نہیں گیا، یعنی وہ کوئی مدرسے سے نکل کے نہیں آئے، لیکن ان سب کی داڑھیاں مرزا شارق کے برابر کی ہیں۔ لوگ دیکھ کے حیبت کھاتے ہیں کہ یہ کیا یار، بالکل جوانی میں داڑھی۔ سب نے داڑھیاں رکھی، بعد میں شادیاں کی، تو آج کے زمانے میں واقعی وہ مثال ہے۔ وہ بچہ گیا تھا، اس نے کسی کو بلیٹ دیا ایک بوتل، وہاں سے نکلنے کے بعد جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ خوش ہو کے یا صحت کے طور پہ، اس کو جوس پلایا گیا۔ وہ جوس اس کے حق میں صحیح نہیں ثابت ہوا۔ وہاں سے وہ آیا، یہ ڈالی گنج پل پہ تھا، اور جو اس کا اسسٹنٹ ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، چکر مجھے آ رہا ہے۔ وہ گاڑی اس نے روکی، اسی لمحے وہ بے ہوش ہوئے اور گر گئے، اور گرے اس کے بعد جو فریکچر ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں کم از کم 6 مہینے گھر پہ آرام کرنی ہے ان کو۔ ان کے حق میں دعا کر دیجیے اور شارق بھائی کو اجازت دی جائے، ان کو زیادہ ان کا امتحان نہ لیا جائے، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حرص کچھ ایسی کہ تجھ سے باخبر کوئی نہیں، حرص کچھ ایسی کہ تجھ سے باخبر کوئی نہیں، آنکھ کے رہتے ہوئے اہل نظر کوئی نہیں۔ حرص کچھ ایسی کہ تجھ سے باخبر کوئی نہیں، آنکھ کے رہتے ہوئے اہل نظر کوئی نہیں، آنکھ کے رہتے ہوئے اہل نظر کوئی نہیں۔ وہ مسافر ہوں کہ جس کا اپنا گھر کوئی نہیں، وہ مسافر ہوں کہ جس کا اپنا گھر کوئی نہیں، ماں سوا تیرے مجھے اذن سفر کوئی نہیں، ماں سوا تیرے مجھے اذن سفر کوئی نہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، وہ تو کہیے صبر کا تریاق حاصل ہو گیا، وہ تو کہیے صبر کا تریاق حاصل ہو گیا، ورنہ میرے دوستوں میں معتبر کوئی نہیں۔ وہ تو کہیے صبر کا تریاق حاصل ہو گیا، ورنہ میرے دوستوں میں معتبر کوئی نہیں، ورنہ میرے دوستوں میں معتبر کوئی نہیں۔ اور فتح کعبہ کی فضیلت دیکھیے تو دوستو، فتح کعبہ کی فضیلت دیکھیے تو دوستو، لاکھ ہو نادار مفلس در بدر کوئی نہیں۔ فتح کعبہ کی فضیلت دیکھیے تو دوستو، لاکھ ہو نادار و مفلس در بدر کوئی نہیں۔ اور ان کے درگاہ ہو گیا جس روز سے شارق غلام، ان کے درگاہ ہو گیا جس روز سے شارق غلام، درد سر کوئی نہیں، درد جگر کوئی۔ شاعری سے نوازا محترم شارق لہرپوری صاحب نے۔ وہ تو کہیے صبر کا تریاق حاصل ہو گیا، ورنہ میرے دوستوں میں معتبر کوئی نہیں۔ یہ برسوں کے تجربے اور مشاہدے کے بعد اس طرح کی شاعری ہوتی ہے۔ اور اب سن لیا جائے قبلہ حیدر علوی صاحب کو، تشریف لائیں۔ استاد شاگرد دونوں کو میں نے ایک ایک مصرعے کے طور پہ لگا دیا۔ آپ ہی کی نظر 4 مصرعے۔ فریب و مکر سے عیاریوں سے چلتے ہیں، فریب و مکر سے عیاریوں
चलते हैं, बड़े बुतों की तरफदारियों से चलते हैं, बड़े बुतों की तरफदारियों से चलते हैं। ये एक कदम भी तो अपना उठा नहीं सकते, कहाँ ये पैरों से बैसाखियों से चलते हैं। कहाँ ये पैरों से बैसाखियों से चलते हैं। और चार मिसरे और देखिए कि हदम कर लिए इन्होंने। फरेब व मकर से अय्यारियों से चलते हैं, बड़े बुतों की तरफदारियों से चलते हैं। ये कदम भी तो अपना उठा नहीं सकते, कहाँ ये पैरों से बैसाखियों से चलते हैं। चार मिसरे और देखिए इब्राहिम भाई कि खुद को शोकेस सा हर रोज सजा कर रखना, खुद को शोकेस सा हर रोज सजा कर रखना कितना मुश्किल है, मगर गम को छुपा कर रखना कितना मुश्किल है, मगर गम को छुपा कर रखना। और मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मेरे बच्चों से मेरा राज छुपा कर रखना। मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मेरे बच्चों से मेरा राज छुपा कर रखना। और जब ताज़े की बात हो गई तो मैं भी ताज़ी गज़ल सुना दूँ। ऐसे तो मेरा ताज़ा ही होता है, मेरे पास बासी सामान नहीं है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। नसीर मियाँ सुनिए, अपने एहसास को मारा भी तो जा सकता है, अपने एहसास को मारा भी तो जा सकता है, उसको दोबारा पुकारा भी तो जा सकता है। अपने एहसास को मारा भी तो जा सकता है, उसको दोबारा पुकारा भी तो जा सकता है। और उसने बतलाया कि उसको इखलास से मारा भी तो जा सकता है, उसको इखलास से मारा भी तो जा सकता है। यार इस जंग को हारा भी तो जा सकता है। लाइए लिफाफा, लाइए लिफाफा। उसको इखलास से मारा भी तो जा सकता है, यार इस जंग को हारा भी तो जा सकता है। और शेर देखिए कि अपने असलाफ की इज्जत को बचाने के लिए, अपने असलाफ की इज्जत को बचाने के लिए यार उस सर को उतारा भी तो जा सकता है। अपने असलाफ की इज्जत को बचाने के लिए यार उस सर को उतारा भी तो जा सकता है। और हमने सोचा ही नहीं उसको सजा दी जाए, हमने सोचा ही नहीं उसको सजा दी जाए, वरना एक सांप को मारा भी तो जा सकता है। हमने सोचा ही नहीं उसको सजा दी जाए, हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं उसको सजा दी जाए, वरना एक सांप को मारा भी तो जा सकता है। ये अलग बात। आज जाजिब साहब पहली बार आपको मुस्कुरा के सुन रहे हैं। नहीं, हम हमेशा मुस्कुरा के सुनते हैं। ये अलग बात मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन ये अलग बात मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन मुझको एक बार पुकारा भी तो जा सकता है। ये अलग बात मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन मुझको एक बार पुकारा भी तो जा सकता है। और अब शेर देखिए कि उलझे बालों पे ये तनकीद सही है, लेकिन उलझे बालों पे ये तनकीद सही है, लेकिन उलझे बालों को संवारा भी तो जा सकता है। उलझे बालों पे ये तनकीद सही है, लेकिन उलझे बालों को संवारा भी तो काय पे हो रहे हैं। आपकी सोबत का असर है, आपकी सोबत बद का असर है। शेर सुनिए कि क्या जरूरी है ताल्लुक़ को निभाया जाए, क्या जरूरी है सलीम मियां, क्या जरूरी है ताल्लुक़ को निभाया जाए। इस ताल्लुक़ को गुजारा भी तो जा सकता है। अच्छा है। क्या जरूरी है ताल्लुक़ को निभाया जाए, इस ताल्लुक़ को गुजारा भी तो जा सकता है। मेरी आवाज़ पलट आती है थक कर वापस, मेरी आवाज़ पलट आती है थक कर वापस। अपने अरमानों को मारा भी तो जा सकता है, अपने अरमानों को मारा भी तो जा सकता है। और मख्ता भी बर्दाश्त कर लीजिए। क्या ज़रूरी है बुलंदी पे पहुंचना है दर, क्या ज़रूरी है बुलंदी पे पहुंचना है दर। चांद पानी में उतारा भी तो जा सकता है। क्या ज़रूरी है
बुलंदी में पहुंचता है इधर, चांद पानी में उतारा भी तो जा सकता है, अपने एहसास को मारा भी तो जा सकता है। भाई आपने सारे आपकी सारी उल्टी जुल्फों को संवारा भी तो जा सकता है। हाँ, तो नवाब साहब ने कहा कि आपको तजुर्बा बहुत है, लेकिन उन्होंने भी धो दिया। उन्होंने कहा ये सब आपकी संगत बद का असर है। बहरहाल बहुत अच्छा ये सिलसिला था और हैदर भाई ने जगा दिया मुशायरे को। तो दावत देता हूँ, आसिम काकोरवी साहब तशरीफ़ ले आए। आसिम का दम इसलिए गनीमत है कि आसिम जिस उम्र में लोग कायदे से शेर नहीं पढ़ पाते, लोग कहते हैं दूध के दांत नहीं टूटे, उस उम्र में ये दो काम करते हैं, शायरी भी अच्छी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, नज़में कहते हैं। इनके वालिद शायर हैं, आलिम दीन हैं, काकोरी से इनका ताल्लुक़ है, उस सरज़मीन का भी फैज़ान है इनके साथ, और पढ़ने का अंदाज़ बहुत खूब है। यानी अगर निज़ामत का ये गला घोट दें तो अच्छे शायर किसी वक्त भी बन के स्टेज पे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन निज़ामत का वो अज़ाब है जिसकी वजह से बहुत से अच्छे लोग ना अच्छी नस्ल लिख पाए, ना अच्छी शायरी कर पाए। इसलिए एक नाज़िम मुस्तकिल आपको पकाता रहता है। अब जब वो शेर पढ़ने आता है तो लोग कहते हैं कि अब इसको दोबारा एक टिकट में 2 शो, तो एक टिकट में एक ही शो होना चाहिए। तो आज आसिम काकोरवी बहैसियत नाज़िम नहीं, लेकिन बहैसियत शायर आपके रूबरू हैं, आप इनको सुनिए और उम्मीद की जाना चाहिए कि फैज़ान खान इनको सही कवर करेंगे और कोई दांव-पेच नहीं होगा। जनाब रिजवान फारूकी साहब की मोहब्बतों को सलाम। यकीनन बड़ा शख्स वो होता है जो अपने छोटों को बड़ा बना के पेश करता है। बहुत शुक्रिया। मैं काकोरी से बताया कि जैसा कि मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहीं से गुफ्तगू करता हूँ कि सितम देखो, अलम देखो, न गम देखो, न बम देखो। सितम देखो, अलम देखो, न गम देखो, न बम देखो, खुदा की राह में निकलो तो बस उसका करम देखो। सितम देखो, अलम देखो, न गम देखो, न बम देखो, खुदा की राह में निकलो तो बस उसका करम देखो। वुज़ू करके दुरूद पाक पढ़कर नात लिखो फिर, वुज़ू करके दुरूद पाक पढ़कर नात लिखो फिर, निगारिश लफ्ज मिसरा शेर कागज और कलम देखो। बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से 4 मिसरे और के नबी की सुन्नतों पर गर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। नबी की सुन्नतों पर गर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। सुकून की नींद चाहो तो दवा हरगिज न तुम लेना, पड़ोसी हो अगर भूखा उसे खाना खिला देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नबी की सुन्नतों पर अगर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। सुकून की नींद चाहो तो दवा हरगिज न तुम लेना, पड़ोसी हो अगर भूखा उसे खाना खिला देना। और आखिरी 4 मिसरे के सुना है तुमने जो कुछ भी वो सब कुछ रूबरू देखो, सुना है तुमने जो कुछ भी वो सब कुछ रूबरू देखो। कई 100 साल की तारीख अब भी हूबहू देखो। तुम्हें तहजीब उर्दू और नज़ाकत देखनी हो तो नए को छोड़ कर आओ, पुराना लखनऊ देखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसिम काकोरवी ने कम लफ्ज़ों में कम शायरी में काम दिखाया। हद है कि नवाब साहब को भी कम कम लफ्ज़ों में दाद देने पर मजबूर किया, वरना अगर ये मोहब्बत पे आ जाए तो कई महफिलें तबाह होने से बाल बाल बचती हैं। तो इन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया, लेकिन बहुत महज़्ज़ब अंदाज से किया। तो हाँ, ये महज़्ज़ब होते जा रहे हैं, ये इनके हक़ में अच्छी फ़ज़ा है। और अब सुन लिया जाए मोहतरम, नहीं आप संगत में आइए, सोहबत में नहीं आइए, वरना फिर इसमें कई बिलादतें हो जाएंगी। संगत में आप रहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।